وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنی خیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ راہداری میں سے گزرتے ہوئے میں نے ایک دو بار ایک کمرے میں پتلی اینک پوش عورت کو سفید کوٹ پہنے اندر جاتے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ ایک بار کمرے کے سامنے سے ٹرالی پر سامان رکھے گزر رہا تھا تو دروازہ کھل گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ دبلی پتلی سانولے رنگ کی عورت کمرے میں کاؤنٹر کے پاس بیٹھی کام کر رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ اس عورت سے دوستی کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ کمرے میں داخل ہونے کا کوئی موقع مل جائے۔ مصیبت یہ تھی کہ وہاں کسی کو کسی سے فالتو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ہر کوئی منہ میں گنگنیاں ڈالے رہتا تھا، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہوتا تو دو لفظی بات ہوتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ میں نے بہت جلد معلوم کر لیا کہ وہ دبلی پتلی سائنسدان عورت ایٹمی کالونی کے ایک کوٹھی نما کوارٹر میں اکیلی رہتی ہے، خود ہی کھانا پکاتی ہے اور اتوار کے دن چھٹی والے دن بھی کہیں نہیں جاتی۔ میں نے ایک منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ عورت سائنسدان تھی، شکل پر ہر وقت ایک فنا آلود اداسی چھائی رہتی تھی۔ میں نے کبھی اسے کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے سوائے وہاں مجھے ان کمروں میں داخل ہونے کا اور کوئی وسیلہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر میں اس بے رنگ و بو قسم کی عورت سے دوستی استوار کر لیتا ہوں تو کسی وقت کم از کم اس سے کوئی ضروری بات کرنے کے بہانے ہی میں اس کمرے میں داخل ہو کر اس کمرے کی تصویریں لے سکتا تھا۔ کسی مرد سائنسدان سے مجھے اس کمزوری کی امید نہیں تھی۔ اس دوران میں نے اس سائنسدان عورت کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات حاصل کر لی تھی۔ اس کا نام نرملا دیوی تھا۔ وہ جے پور راجستھان کی رہنے والی تھی۔ نیوکلیئر سائنسز میں اس نے MS کیا ہوا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ایک بھائی تھا جو بمبئی میں کاروبار کرتا تھا۔ نرملا دیوی اسی لیے ہفتے اتوار کو بھی کہیں باہر نہیں جاتی تھی اور اپنے کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ میں شام کے وقت سیر کے بہانے کالونی میں نکل آتا۔ عجیب بات تھی، وہاں سارے لوگ سینٹر سے واپس آ کر اپنے اپنے کمروں میں جیسے بند ہو جاتے۔ کہیں کہیں کوئی سائنسدان یا ورکر اپنی رہائش گاہ کے صحن میں پودوں کو پانی وغیرہ دیتا نظر آتا۔ یہ لوگ راج گڑھ سے قریبی رام گڑھ کے قصبے سے ہفتے بھر کا راشن خرید کر لے آتے اور اس کے بعد کمروں میں بند ہو جاتے۔ اس قسم کے پراسرار لوگوں سے میرا پہلی بار واسطہ پڑا ہے۔ بہرحال کالونی میں کمروں سے باہر نکلنے کی اجازت تھی، چنانچہ میں شام کے وقت یا چھٹی کے دن نرملا دیوی کے کوارٹر کے ارد گرد ایک دو چکر لگانے لگا۔ ایک طرح سے میں نے اس کی نگرانی شروع کر دی تھی کہ وہ کس وقت کیا کرتی ہے اور اس کے مشاغل کیا ہیں۔ مگر یہ سائنسدان عورت سب سے زیادہ تنہائی پسند تھی۔ کبھی میں نے اسے شام کے وقت یا چھٹی والے دن بھی کمرے سے باہر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاس کوئی نوکرانی بھی نہیں تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ عورت میرے کام آ سکتی ہے۔ صرف ایک بار اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے دو باتیں کرنے کی دیر تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اس پر اپنا اثر ڈال لوں گا۔ ایک روز میرے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ میں سینٹر سے چھٹی کے بعد اپنے کوارٹر میں آنے کی بجائے راج گڑھ کے بڑے بازار میں آ گیا، جہاں مٹھائیوں کی بڑی اچھی دکان تھی۔ وہاں سے میں نے ایک سیر مٹھائی کا ڈبہ لیا اور اپنی کالونی کی طرف چل پڑا۔ نرملا دیوی کے کوٹھی نما کوارٹر کا دروازہ بند تھا۔ وہاں سب کوارٹروں کے دروازے بند ہی رہتے تھے۔ میں نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ کسی کے دروازے پر کال بیل نہیں تھی۔ دو تین بار دستک دینے کے بعد اندر سے کسی عورت کی نیم مردہ سی آواز آئی۔ اس نے انگریزی میں پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، نرملا جی میں ہوں، جسونت سنگھ، آپ کے ساتھ ہی سینٹر میں کام کرتا ہوں۔ 4-5 سیکنڈ کی خاموشی کے بعد اندر سے پھر اس عورت نے انگریزی میں کہا، کیوں آئے ہو؟ میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا، میڈم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے ایک ضروری چیز لایا ہوں، پلیز مجھے مایوس مت کیجیے۔ میں نے پتہ کر لیا تھا، وہ ماگھ کے دیسی مہینے کی 16ویں تاریخ تھی۔ مزید 10 سیکنڈ کے وقفے کے بعد دروازہ آہستہ سے کھلا۔ میرے سامنے دبلی پتلی سائنسدان عورت نرملا دیوی سفید ساڑی اور سفید کوٹ پہنے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے گھر پر بھی دفتر والا لباس پہن رکھا تھا، صرف سر پر سفید گاندھی کیپ نہیں تھی۔ میں نے عورتوں پر اثر ڈالنے والی شستہ انگریزی میں کہا، میڈم میری ماتا جی ماگھ کی 16ویں کو گرو ارجن دیو جی کا پرشاد دیا کرتی ہیں۔ میری ماتا جی تو یہاں نہیں ہیں، میں ان کی جگہ یہ پرشاد آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ کے پاس پرشاد لانے کی خاص وجہ یہ ہے میڈم کہ یہ پرشاد ماتا جی صرف عورتوں اور بچوں میں ہی بانٹتی ہیں، کسی مرد کو یہ پرشاد نہیں دیا جاتا، آپ پلیز اسے قبول کر لیجئے۔ نرملا دیوی کے چہرے کے تاثرات میں ذرے جتنا بھی تغیر نہ آیا۔ وہ مسلسل سپاٹ چہرہ اٹھائے بے جان آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس وقت مجھے لگا کہ یہ برف کی بنی ہوئی عورت ہے۔ میں نے اپنی باتوں میں 1 سیکنڈ کا بھی وقفہ نہ ڈالا اور مٹھائی والا ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، پلیز اسے سویکار کریں، کالونی میں صرف آپ ہی ایک خاتون ہیں، ویسے بھی میں آپ کے سنجیدہ مزاج اور کلاسیکل خد و خال سے بڑا متاثر ہوں۔ اس آخری جملے نے تھوڑا سا کام دکھایا۔ اس نے ڈبہ لے لیا۔ اب میں اس انتظار میں تھا کہ وہ مجھے اندر آنے کا کہے، مگر اس نے شکریہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں اپنی عادت کے مطابق داڑھی کو ایک ہاتھ سے اوپر چڑھاتے ہوئے اپنے کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ سکھ نوجوان کا بھیس بدلنے کے بعد مجھے کچھ عادتیں سکھوں والی ہو گئی تھیں۔ مثلاً زبان پر پہلے سے زیادہ گالیاں آتی تھیں اور مجھے بات کرتے ہوئے انہیں روکنا پڑتا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سکھوں کی طرح مجھے داڑھی کو ہاتھ سے اوپر چڑھانے کی عادت پڑ گئی تھی۔ اب کوارٹر میں آ کر میں نے بھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا اور اس عورت پر کسی دوسری طرف سے حملہ کرنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس عورت کو انگریزی بولنے کا بڑا شوق ہے۔
मैं दिल्ली से एक अंग्रेजी की किताब खरीद कर लाया था जो इस वक्त बिल्कुल नई की नई मेरे पास पड़ी थी। ये किसी अंग्रेज मुसन्निफ का नॉवल था जिसका नाम मुझे अच्छा लगा था। मैंने खरीद लिया। अभी मैंने उस पर अपना नाम भी नहीं लिखा था। 2 दिन बाद मैं शाम के वक्त एक बार फिर साइंसदान औरत निर्मला देवी के यहाँ पहुंच गया। हस्बे मामूल दरवाजा बंद था। कुछ डरते डरते दस्तक दी। 3-4 बार दस्तक देने के बाद अंदर से वही मुर्दा सी आवाज आई। ये साइंसदान निर्मला देवी की आवाज थी। उसने अंग्रेजी में पूछा कौन है। मैंने अपना नाम बताया और जल्दी से अंग्रेजी में कहा मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत तोहफा लाया हूँ। शायद तोहफे का सुनकर या खुदा जाने उसके दिल में क्या ख्याल आ गया, उसने दरवाजा खोल दिया। आज फिर उसके दरवाजा खोलते ही मुझे डिटोल की हल्की हल्की बू आई। उसने आज भी सफेद कोट साड़ी के ऊपर पहना हुआ था। सर के बालों को छोटा सा जूड़ा बनाकर पीछे बांध रखे थे। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, यही कोई 24-25 साल होगी, मगर वो अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा लगती थी। चेहरे पर आज भी ऐसी मुर्दनी छाई थी जैसे अभी अभी किसी रिश्तेदार को दफन करके आई है। मैंने फौरन किताब का पैकेट उसकी तरफ बढ़ाया और जितनी आला किस्म की अंग्रेजी बोल सकता था बोलते हुए कहा, मैडम ये अंग्रेजी नॉवल है, इसका नाम बहुत खूबसूरत है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगी। पता नहीं कैसे उसका दिल थोड़ा मोम हो गया। उसने किताब का पैकेट लिया और उस पर मैंने सब्ज रंग का कागज चढ़ाया था उसे खोलने लगी। मुझे बराबर उसकी तरफ से डिटोल की बू आ रही थी। उसके जिस्म से चाहे मगरमच्छ की बू आती। मेरे जेर जमीन कमांडो मिशन की यही एक उम्मीद थी, क्योंकि मैंने वहां देखा था कि एटमी सेंटर के मुख्तलिफ शोबों के जो 5 कमरे थे और जिनके बाहर गार्ड मौजूद रहता था, वहां काम करने वाले खुद किसी को बुलाना चाहें तो वो उन्हें बुला सकते थे, लेकिन इस दौरान गार्ड उस आदमी के साथ अंदर जाता था। मुझे तो सिर्फ सेक्शन के अंदर जाना था और फिर मेरे टाइप इन में लगे हुए कैमरे ने प्लांट के तमाम आलात की तस्वीरें उतारनी थी। उसके बाद मैं दूसरे सेक्शन की तस्वीरें उतारने के मुतालिक भी कोई तरकीब सोच सकता था, मगर सबसे पहले इस सेक्शन में दाखिल होना चाहता था जहां ये साइंसदान औरत काम करती थी। इस औरत को मैं किसी मर्द साइंसदान के मुकाबले में कुछ आसानी से वरगला सकता था। किताब का कागज हटाकर उसने सरवर्क देखा और बेजान आवाज में बोली, हाँ नाम अच्छा है। मैंने गोया पत्थर को जौंक लगा ली थी। मैंने जल्दी से कहा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इस कॉलोनी में किसी खूबसूरत औरत से बात करने को तरस गया हूँ। उसने किताब से नजरें हटाकर नीम मुर्दा आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर अंग्रेजी में कहा, आ जाओ। मैं अंदर चला गया। उसके पास 2 कमरों का क्वार्टर था, यानी वही क्वार्टर नुमा कोठी। कमरे में हर तरफ अजीब बदनज़मी और अफरा तफरी थी। सोफों, मेजों और पलंग पर मैले कपड़े और मुख्तलिफ चीजें पड़ी थी। जो शय गुस्ल खाने में रखने वाली थी वो खाने की मेज पर पड़ी थी। दीवार पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगी थी जो एक तरफ को झुकी हुई थी। कोई सोफा, कोई कुर्सी ऐसी नहीं थी जिस पर पुराने कपड़े या कोई बर्तन वगैरह न हो। मुझे बैठने को जगह नजर नहीं आ रही थी, मगर मेरा वहाँ कुछ देर बैठना जरूरी था। पलंग का कोना जरा सा खाली था। मैं वहाँ बैठने लगा तो साइंसदान निर्मला देवी, जो दरवाजा बंद करके उसके पास ही खड़ी थी, किताब की वरगर्दानी कर रही थी, वहीं से बोली, बैठने की जरूरत नहीं। मैं बैठते बैठते रुक गया। वो वहीं से बोली, तुम्हें मालूम नहीं हम लोग एक दूसरे से नहीं मिल सकते, आइंदा मेरे यहाँ मत आना, अब तुम जाओ। मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मुझे इस औरत से काम निकालना था। मैंने फौरन अंग्रेजी में कहा, मगर मैडम मुझे तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा लगा है, ये आपकी तरह बड़ा चार्मिंग है। आप मुझे इजाजत दें कि मैं यहाँ 1-2 मिनट बैठकर आपसे बात कर सकूं। वो मुझे बड़े गौर से देखने लगी। कमरे की दीवार के साथ लगा बल्ब रोशन था। ये कमरे में सिर्फ एक ही बल्ब था। इसकी रोशनी में मुझे सफेद कपड़ों में मलबूस छोटे से जूड़े वाली सपाट जिस्म की वो औरत कोई भूत परीत लग रही थी जो किसी कब्र में से निकल कर आ गई हो। उसने किताब बंद की और एक कुर्सी पर मैले कुचैले कपड़े नीचे गिराकर बैठ गई। एक टांग दूसरी टांग पर रखी और गर्दन टेढ़ी करके घूरने लगी। अच्छा, वो अंग्रेजी में बोल रही थी, तो तुम्हें मुझसे बातें करने का बड़ा शौक है, तुम बिल्कुल सिख हो। मुझे सिखों की ये बात अच्छी लगती है कि वो अक्खड़ टाइप होते हैं। अगर तुमको मुझसे बातें करने का इतना ही शौक है तो फिर इस वक्त यहाँ से फौरन निकल जाओ। मैं कुछ कहने लगा। उसने सर्द लहजे में कहा, जाओ। मैं अपना सा मुंह लेकर वापस चला गया। 2 दिन गुजर गए। मैं एक बार फिर साइंसदान औरत के घर हमलावर होने का प्रोग्राम बना रहा था कि तीसरे दिन की बात है। मैं सुबह एटमी सेंटर की जेर जमीन जाने वाली सीढ़ियां उतरकर दूसरे कारकुनों के साथ सफेद कोट पहने क्लॉक रूम में दाखिल हुआ तो वहां पहले से लोहे की अलमारियों के पास खड़ी साड़ी के ऊपर सफेद कोट पहन रही थी। उसने मुझे देखा तो बाहर निकलते हुए मेरे करीब आकर इतना कहकर बाहर निकल गई, रात को 1 बजे आना, दरवाजा खुला होगा। मैं हक्का बक्का सा होकर उसका मुंह तकता रहा। मुझे इतनी बड़ी कामयाबी की हरगिज उम्मीद न थी। सारा दिन रात के इंतजार में गुजर गया। सेंटर में साजो सामान की ट्रॉली भी इधर से उधर ढोता रहा और सोचता भी रहा कि आखिर उसके दिल में मेरे लिए इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। और उसने मुझे खुद रात को 1 बजे घर पर बुला लिया। रात को 1 बजे बुलाने का मतलब मैं अच्छी तरह समझता था, लेकिन मुझे अपना कमांडो मिशन कामयाब होता नजर आया। सेंटर से छुट्टी के बाद इंस्टीट्यूशन की वैगन में बैठकर अपनी कॉलोनी में आ गया। बड़ी मुश्किल से शाम हुई, फिर कहीं रात हुई। अब रात का 1 नहीं बज रहा था।
कभी रिसाला पढ़ता, कभी कोई किताब। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि कहीं ये औरत मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रही। फिर सोचा कि अगर इसने कोई साजिश करनी होती तो अपने घर में न करती। मैंने इस मनफी ख्याल को दिल से निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से रात के 12 बजे, फिर 12:30 बजे मैंने नस्वारी रंग की कमीज और उसी रंग की पतलून पहन ली ताकि अंधेरे में आसानी से नजर आ सकूं। मेरे सर पर जो पगड़ी थी उसका रंग भी गहरा था। कमरे के साथ मैं जो सिखों वाली कृपान लटकाए खड़ा था वो भी मैंने उतार कर खूंटी के साथ लटका दी थी। ठीक 1 बजे मैं अपने क्वार्टर के पिछले दरवाजे से निकला और साइंसदान औरत निर्मला देवी के क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। कॉलोनी में रात को ज्यादा रोशनियां करने की इजाजत नहीं थी। किसी क्वार्टर में रोशनी हो रही थी, बाकी सब अंधेरा छा रहा था। साइंसदान औरत का क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था। मैं सामने से आने की बजाय उसके अकब से होता हुआ सामने वाले बरामदे में आ गया। बरामदे में घुप अंधेरा था। कमरे के रोशनदान पर भी अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दरवाजे को जरा सा धकेला, दरवाजा खुल गया। उसने दरवाजा खुला रखा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, उसकी ठंडे बेजान लहजे वाली आवाज आई। वो उस वक्त भी अंग्रेजी बोल रही थी। दरवाजा बंद करके बोर्ड लगा दो। मैंने वैसा ही किया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी। उसने टेबल लैंप रोशन कर दिया। टेबल लैंप गहरे शेड वाला था और बल्ब भी बहुत कमजोर था, जिसकी वजह से कमरे में अजीब किस्म की आसेबी रोशनी फैल गई। वो पलंग पर थी। टेबल लैंप के पास वही अंग्रेजी का नावल रखा हुआ था जो मैंने उसे दिया था। वो उठकर बैठ गई। उसके बाल खुले थे जो बड़े मुख्तसर थे। वो उनका जूड़ा बनाने लगी। कमरे की फजा में वही डिटोल की बू फैली हुई थी। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी अस्पताल के ऑपरेशन रूम में आ गया हूँ। उसने हुक्म देने के अंदाज में कहा, यहाँ आकर बैठ जाओ। मैं पलंग पर बैठने लगा तो उसने डांटते हुए कहा, यहाँ नहीं, कुर्सी पर बैठो। पलंग के पास ही कुर्सी थी। मैं उस पर बैठ गया। मैंने बड़ा उम्दा और कीमती परफ्यूम लगाया हुआ था। उसने नाक सुकेड़ कर पूछा, तुम परफ्यूम लगा कर आए हो? मैंने अहमकों की तरह हंसते हुए कहा, यस मैडम। वो गर्दन पर अपने थोड़े से बालों का छोटा सा जूड़ा बनाते हुए बोली, परफ्यूम मत लगाया करो, डिटोल लगाया करो, ये जरासीम को डिइंफेक्ट करता है। उसने स्लीपिंग सूट पहना हुआ था। उसने मेज पर से मेरा दिया हुआ नॉवल उठाया, उसको खोला, फिर जोर से बंद करके मुझसे बड़े तल्ख लहजे में कहने लगा, तुम इतने फोहश नॉवल पढ़ते हो, अगर तुम पढ़ते हो तो पढ़ो, मुझे क्यों दिया था? क्या तुमने ये नॉवल पढ़ा है? मैं सख्त नदामत महसूस कर रहा था। नहीं मैडम। वो किताब के वर्क उलटने लगी, फिर एक जगह किताब खोलकर मेरी तरफ बढ़ाई, जरा इसे पढ़ो। मैं झुककर टेबल लैंप की कमजोर रोशनी में पढ़ने लगा। माय गॉड, किताब वाकई बड़ी वाहियात थी। मैं तो सख्त परेशान हुआ। ये औरत तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे अपने सारे किए किराए पर पानी फिरता महसूस हुआ। मैंने किताब बंद करते हुए कहा, मुझे बहुत अफसोस है मैडम, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि ये किताब इतनी वाहियात है। आप प्लीज मेरी माजरत कबूल करें। ये जुमला मैंने उर्दू में कहा, लेकिन मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही जब मैंने देखा कि साइंसदान औरत मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, मगर मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी है। उसके बाद मैं उससे झूठ मूठ प्यार मोहब्बत की बातें करता रहा, लेकिन ये बातें मैं इसलिए कर रहा था कि ये मेरे मिशन का हिस्सा थी। उस रात मेरी और उस साइंसदान औरत निर्मला देवी की बेतकल्लुफी हो गई। अब मेरा ये मामूल बन गया कि एक रात छोड़कर मैं रात के 1 बजे के बाद उसके पास पहुंच जाता और आधा घंटा बैठकर वापस आ जाता। इस दौरान बातों बातों में मुझे पता चला कि कुछ दिनों से एटमी सेंटर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और एटमी प्लांट और साजो सामान वाले सेक्शन में कोई कारकुन सेंटर के किसी भी कारकुन को जिसका किसी दूसरे शोबे से ताल्लुक हो अपने कमरे में नहीं बुला सकता था। मगर जसवंत, तुम हमारे कमरे में आकर करोगे क्या? वहाँ सिवाय कंप्यूटर और एटमी मशीनरी के जरूरी आलात के और कुछ भी नहीं है। उसे तुम क्या देखोगे? मैंने कहा, बस मेरी ख्वाहिश थी कि देखूं कि एटम बम कैसे बनता है। वो हंस पड़ी। अब वो हंसने भी लगी थी। कहने लगी, तुमने तो साइंस पढ़ी हुई है, तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि अभी तो हमने एटमी धमाका भी नहीं किया, अभी तो हम इब्तदाई मरहलों में हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिन के वक्त थोड़ी देर के लिए अंदर आकर मशीनों को देखूं? मुझे उन्हें देखने का बड़ा शौक है। वो नफी में सर हिलाकर बोली, नहीं जसवंत, तुम अब तो बिल्कुल ही हमारे कमरे में नहीं आ सकते। मैंने कहा, क्या ऑफिस टाइम के बाद भी अंदर नहीं जा सकता? निर्मला देवी ने कहा, ऑफिस टाइम के बाद फौरन सारे कमरों को ताले लग जाते हैं और उनकी चाबियां गेट पर रात को पहरा देने वाले गार्ड अपने पास रखता है। सिर्फ एक डुप्लीकेट चाबी हर सेक्शन के इंचार्ज के पास रहती है। मैं अपने सेक्शन की इंचार्ज हूँ, इसलिए एक डुप्लीकेट चाबी मेरे पास हर वक्त मौजूद रहती है, क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ सकती है। जिस मकसद के लिए मैंने उस साइंसदान औरत से सवाल पूछा था, वो मकसद मुझे हासिल हो गया था। मैंने वहीं बैठे बैठे जो स्कीम सोची थी, उसके लिए इस औरत के पास जो चाबी थी उसे उड़ाना बहुत जरूरी था। मगर एक नुक्ता अभी हल तलब था। मैंने यूं जाहिर किया जैसे मुझे अब सेंटर देखने की कोई ख्वाहिश नहीं है और मैं सिर्फ अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए पूछ रहा हूँ। साथ साथ मैं उस औरत से प्यार मोहब्बत भी किया जा रहा था। हर सेक्शन की चाबी अलग होती है। अगर भगवान न करे कोई इमरजेंसी पैदा हो जाती है तो एकदम से सारे कमरे नहीं खोले जा सकते। गार्ड को एक एक कमरे की चाबी तलाश करके लगानी पड़ेगी। ये सिक्योरिटी के खिलाफ बात है। निर्मला देवी पर एक अजीब सरूर की कैफियत तारी थी। कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, सारे सेक्शनों को एक ही चाबी लगती है। मगर तुम ये क्या बकवास ले बैठे हो?
मैंने कहा आई एम सॉरी निर्मला जी, मैं तो सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की वजह से पूछ रहा था। उसके बाद मैंने अमली बकवास शुरू कर दी जो बहुत जरूरी थी। निर्मला देवी पर मैंने अपना असर जमा लिया था। पहले मैं हफ्ते में 1-2 बार रात को उसके क्वार्टर में जाता था, अब मैंने एक दिन छोड़कर जाना शुरू कर दिया। क्योंकि कॉलोनी में लोग रात को अपने अपने क्वार्टरों में बंद हो जाते थे, इसलिए मेरे लिए आधी रात को निकलकर अंधेरे में उसके कमरे में जाना मुश्किल नहीं था। फिर भी मैं बेहद एहतियात से काम लेता। इस दौरान मैंने मालूम कर लिया कि निर्मला देवी अपने सेक्शन की डुप्लीकेट चाबी किचन में शेल्फ के ऊपर मिट्टी के एक गुलदान में रखती है। एक रात मैं वहां से चाबी निकाल कर ले आया। राजगढ़ के कस्बे में एक ताले चाबियां बनाने वाले की दुकान थी। हफ्ते की रात को मैं चाबी उड़ा लाया था। इतवार की सुबह को मैं चाबी लेकर दुकानदार के पास गया और उसे कहा कि मुझे 1-2 घंटों में इस चाबी की डुप्लीकेट तैयार करके दे। मैंने 50 रुपए निकाल कर दिए। 50 रुपए देखकर दुकानदार ने बाकी काम छोड़ दिया और बोला, सरदार जी आप यहाँ बैठे, मैं अभी इसकी नकल बना देता हूँ। आदमी कारीगर था। उसने आधे घंटे में मुझे बिल्कुल उसी तरह की एक दूसरी चाबी बना दी। मैंने ऐसा किया कि दुकानदार की बनाई हुई चाबी निर्मला देवी के किचन के गुलदान में रख दी और असली डुप्लीकेट चाबी अपने पास रख ली, इस ख्याल से कि कहीं ऐन वक्त पर दुकानदार की बनाई हुई चाबी ताले में लगने से इनकार न कर दे। मेरे सीक्रेट कमांडो मिशन का पहला मरहला भारत के उस जेर जमीन खुफिया एटमी मरकज में मुलाजिमत हासिल करना था। दूसरा, साइंसदान औरत से दोस्ती करके उससे चाबी हासिल करना था। ये दोनों मरहले कामयाबी से तय हो गए। अब मुझे तीसरे मरहले पर काम शुरू करना था। ये मरहला पहले दोनों मरहलों से ज्यादा खतरनाक और जानलेवा था। इस खतरनाक मरहले पर अमल करते हुए मुझे छुपकर एटमी सेंटर के 5 कमरों में जाकर एटमी आलात और साजो सामान की तस्वीरें उतारनी थी। मैंने अपने जहन में जो स्कीम बनाई थी उसके मुताबिक मुझे रात के वक्त जब सेंटर के तमाम सेक्शन और लेबोरेटरियां बंद कर दी जाती थी और वहां कोई नहीं होता था, उस वक्त वहां जाकर एक एक करके 5 कमरों को खोलना और अंदर लगे हुए आलात की तस्वीरें बनाना थी। ये काम मैं छुट्टी के बाद सेंटर से निकलने के बाद नहीं कर सकता था, क्योंकि मैंने मालूम कर लिया था कि रात के वक्त जेर जमीन सेंटर के बाहर गार्ड्स का जबरदस्त पहरा लग जाता है। मिनरल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाला मेन गेट बंद करके ताला लगा दिया जाता। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। इसके लिए मेरा ऑफिस टाइम के बाद सेंटर के खुफिया तहखाने में रह जाना जरूरी था। मैं इस बात का भी जायजा ले चुका था कि छुट्टी के बाद वर्करों की कोई गिनती या चेकिंग नहीं होती थी। यूं अगर छुट्टी होने के बाद कोई वर्कर अगर अंदर रह जाए तो गेट पर गार्ड को पता नहीं चल सकता था। ये सिक्योरिटी के निजाम की बड़ी खामी थी, लेकिन ये खामी मेरे हक में बेहद मुफीद साबित हुई। मैंने इस अमर की भी तस्दीक कर ली थी कि अंदर सिर्फ एक ही अलार्म लगा था जो आग लगने की सूरत में शोर मचाता था। ऐसा कोई अलार्म नहीं था कि अगर लेबोरेटरी के दरवाजे को खोला जाए या वहाँ किसी डायल या दूसरी किसी मशीनरी को हाथ लगाया जाए तो अलार्म चीख उठे। मैंने एक बात खास तौर पर नोट की थी कि सुबह ऑफिस टाइम पर सेंटर में दाखिल होते हुए वर्करों की चेकिंग बहुत सख्त होती थी, मगर इनकी गिनती नहीं होती थी। यानी अगर कोई वर्कर किसी रोज काम पर नहीं आता था तो गेट पर ड्यूटी देने वालों को मालूम नहीं हो सकता था। सिक्योरिटी की इस एक गफलत या कमजोरी ने भी मेरी राह हमवार कर दी थी। मुझे अब किसी एक रात का इंतखाब करना था जो रात को मुझे ऑफिस टाइम के बाद जेर जमीन एटमी सेंटर से बाहर नहीं निकलना था, बल्कि वहीं किसी जगह छुप कर बैठना था। छुप कर बैठने के लिए मैंने काफी देखभाल करने के बाद एक जगह चुन ली। ये जगह एटमी सेंटर का क्लॉक रूम था, यानी वो कमरा जहां हर साइंसदान टेक्नीशियन वर्कर जेर जमीन सेंटर में दाखिल होने के बाद जाकर अपना कोट उतार कर एक लंबे क्लोजेट में टांग देता है और दूसरे क्लोजेट से डॉक्टरों वाला सफेद कपड़े का बना हुआ कोट उतार कर पहन लेता है। मैं इस क्लोजेट को इस्तेमाल कर सकता था। वहाँ दिन के वक्त कभी कोई पहरेदार नजर नहीं आया था। जिस रात मैंने जेर जमीन एटमी सेंटर में रहना था उस रोज मैं पूरी तरह तैयार होकर क्वार्टर से निकला। मैंने खुफिया कैमरे वाला टाइप इन साथ लिया। साइंसदान औरत निर्मला देवी के गुलदान से निकाली हुई सेक्शनों और लेबोरेटरियों की डुप्लीकेट चाबी संभाल कर पतलून की जेब में रख ली और इंस्टीट्यूट की गाड़ी में बैठकर दूसरे वर्करों के साथ एटमी सेंटर पहुंच गया। सारा दिन मैं अपने मामूल के मुताबिक काम करता रहा। 4 बजे सेंटर में काम बंद कर दिया जाता था। मैं 3:45 बजे स्टोर रूम से निकल आया। कमरों के बाहर गार्ड ड्यूटी पर खड़े थे। उन्हें मालूम हो चुका था कि मैं वही मुलाजिम हूँ। मैंने यूं ही एक खाली डिब्बा स्टोर से उठा लिया था। डिब्बा हाथों में थामे मैं उनके करीब से गुजर गया। किसी गार्ड ने मेरी तरफ खास तौर पर न देखा, बस एक सरसरी सी नजर से देखा और अपनी ड्यूटी पर पत्थर के बुत की तरह खड़े रहे। क्लॉक रूम सेंटर की सुरंग के शुरू में था। वहां से पत्थर की सीढ़ियां बाहर को जाती थीं। वहां कोई दरवाजा नहीं था। दरवाजा ऊपर जाकर था जहां ऑफिस में आते हुए जबरदस्त चेकिंग होती थी। मैंने एक नजर पीछे देखा। 5 कमरों के बाहर गार्ड अपनी जगह पर चाको चौबंद खड़े थे। किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं था। मैं जल्दी से क्लॉक रूम में दाखिल हो गया। क्लॉक रूम में बड़ी धीमी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। इस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी सिक्योरिटी की जरूरत होती। मैंने साथ वाली दीवार के क्लोजेट का मुआयना किया। यहाँ वापसी पर काम करने वाले जाती दफा अपने कोट लटका देते हैं। ये कोट हैंगरों में लटके होते थे और उनके पीछे आसानी से छुपा जा सकता था। ये क्लोजेट खाली पड़ा था। मैं डिब्बा उठाए वापस आ गया।
मैं सिर्फ साइट का एक बार मुआयना करने गया था। छुपना मुझे ऑफिस टाइम के बाद था। इस काम के लिए भी बेहद एहतियात और होशियारी की जरूरत थी। इसके लिए मैं पूरी तरह तैयार था। मुश्किल ये पेश आ रही थी कि वहाँ दूसरी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं ऑफिस टाइम के बाद छुप सकता। मैं स्टोर रूम में भी नहीं छुप सकता था, क्योंकि पहली बात तो ये थी कि ऑफिस टाइम के खत्म होने के बाद गार्ड हर कमरे में जाकर पूरी चेकिंग करते थे। दूसरी बात ये थी कि स्टोर रूम को ऑफिस टाइम के बाद स्टोर कीपर लाला जी ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाते। इसकी उन्हें खास तौर पर इजाजत मिली हुई थी। वहाँ सिर्फ क्लॉक रूम ही ऐसी जगह थी जहाँ मैं ऑफिस टाइम के खत्म होने के बाद गार्ड्स की चेकिंग से बच सकता था। एक बार उनके बाहर निकलने के बाद मैं वहाँ आजादी से चल फिर सकता था, क्योंकि जेर जमीन एटमी सेंटर के अंदर रात के वक्त सिर्फ बत्तियां जलती रहती हैं। अंदर कोई गार्ड ड्यूटी पर नहीं होता था। गार्ड का पहरा रात को सिर्फ ऊपर वाले मेन गेट पर ही रहता था। पूरे 4 बजे ऑफिस टाइम खत्म हो गया। साइंसदान, फनी माहिरीन और वर्कर्स अपने अपने काम छोड़कर बड़ी खामोशी और थकावट के साथ क्लॉक रूम की तरफ चल पड़े। मैं स्टोर रूम में ही था। स्टोर कीपर चीजें संभाल रहा था। मैं चीजें अपनी अपनी जगह पर रखने में उसकी मदद कर रहा था और तिरछी नजरों से राहदारी को भी देख लेता। जहां वर्कर्स क्लॉक रूम में दाखिल होते, अंदर जाकर क्लोजेट में सफेद कोट लटकाने और अपने कोट पहनकर बाहर आ जाते। जब मैंने देखा कि सिर्फ 2-4 ही आदमी रह गए हैं, तो मैं भी क्लॉक रूम की तरफ चल पड़ा। राहदारी में 5 शोबों के कमरों के बाहर गार्ड पहरे पर बाकायदा मौजूद थे। मैं उनके सामने से गुजर गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।